Hello everyone, welcome to Aspire Academy. Today we are going to study about pteridophytes. Okay, what are pteridophytes in the plant kingdom? Okay, the classification which we have seen. Pteridophyte, where does it stands, and what are the basic characteristic feature of pteridophytes? What are the plants that come among this pteridophytes categories? So that all will cover up. Firstly, what we have seen that the whole plant kingdom is classified. जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है क्रिप्टोगैम्स दैट आर एल्गी, ठीक है, एल्गी है, ओके, देन वी हैव सीन ब्रायोफाइट्स, देन द टेरिडोफाइट्स. सो जो एवोल्यूशन है प्लांट बॉडी का वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम द वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर से हुआ है, दैट इज एल्गी, बिकॉज एल्गी जो है वाटर में मिलते हैं. देन द सेकेंड वन वाज ब्रायोफाइट्स. सो ब्रायोफाइट्स क्या हुए थे? एल्गी ही इवॉल्व किया, ठीक है, उनमें राइजोइड्स का डेवलपमेंट हमने देखा विच वाज नॉट ट्रू रूट. Then after that, that is pteridophytes. Okay, so algae, then bryophytes, then pteridophytes. So the pteridophytes, they are the higher cryptogams. Okay, so plant kingdom जो हमने देखा cryptogams and phanerogams. So cryptogams में जो pteridophytes है वो सबसे higher level पे है, ठीक है, because basic सबसे starting level में क्या थे? Algae, then bryophytes. Okay, so the cryptogams we can say among the cryptogams, the higher one is the pteridophytes. Okay. So pteridophytes are those plants which have proper developed vascular bundle. That means xylem and phloem जो tissues है वो properly developed आपको दिखेंगे pteridophytes में, which was not seen in algae, ठीक है, and neither in the bryophytes, but it is properly present, ठीक है, in the pteridophytes. So we can say pteridophytes are vascular cryptogams. They are the higher cryptogams. They are the vascular. So crypto का मतलब क्या होता है? Cryptogams. This cryptogams जिसमें pteridophytes belong करते हैं, that means crypto means hidden and gamus that means weeded. So hidden weeds है. Okay, so these are the group of seedless vascular. Again we know cryptogams जो होते seedless plants है. Okay, so we can say they are seedless but vascular plant है क्योंकि इनके पास vascular bundles है. So that have successfully invaded land, क्योंकि इवोल्यूशन कहां से हुआ? एल्गी, ठीक है, एंड देन ब्रायोफाइट्स. ओके, उसके बाद क्या आते हैं? हायर क्रिप्टोगैम्स, दैट इज टेरिडोफाइट्स. नाउ सो दे हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड. तो ब्रायोफाइट्स थे वो तब तक तो दे वर आल्सो द टेरेस्ट्रियल, बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर. बट टेरिडोफाइट्स, they are present on the land, so they invaded land, first plant on the land, ठीक है, so they are first plant on land, completely जो land पे survive कर सकते हैं by the, so they reproduces by the means of spores, ठीक है, इनमें जो reproduction होता है that is by the spore formation. So pteridophytes are also known as a snake of plant kingdom, ठीक है, प्लांट किंगडम के लिए स्नेक बोला जाता है बिकॉज द बोटानिकल स्नेक्स, जैसे नॉर्मली के स्नेक्स को देखा जाए, दे बिलोंग्स टू रेप्टिलिया, ठीक है, रेप्टाइल्स. ओके, सो सिंपली टेरिडोफाइट्स भी जो है दे आर, व्हाई दे आर नोन एज अ स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम? बिकॉज एम्फीबियन, अगर आप देखो एनिमल किंगडम में, ठीक है, एम्फीबियंस के बाद जो आप देखोगे इवोल्यूशन होके क्या बने? रेप्टाइल्स बना, ठीक है. सो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का, तो टेरिडोफाइट्स को क्या बोला जाता है? रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट किंगडम. सो रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट मीन्स टेरिडोफाइट्स, ठीक है, बिकॉज दिस टेरिडोफाइट्स हैव बीन evolved फ्रॉम द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट इज द ब्रायोफाइट्स. ओके, नाउ occurrence, where are they? habitat किस areas में मिलते हैं आपको? तो what is the occurrence of or the habitat of the pteridophytes? So mostly the pteridophytes grows in the variety of the habitat. So they are found on the terrestrial region. Terrestrial plant है, first terrestrial plant है. They thrive well in abundant moisture. अगर moisture मिले, shady, even in the shade also they grow well. Okay, so some flourish well in xeric condition also, जहाँ पे बहुत dry, hot and humid condition है वहां भी grow कर जाते हैं. So example of the pteridophytes, that is Selaginella and Lepidophylla. Selaginella, Lepidophylla, that is one name. So ये that grows. These are one of the pteridophytes. So the few pteridophytes, they are aquatic. कुछ है जो अभी भी aquatic है. Okay, that is Marsilia, Salvinia, Azolla. Okay,
but mostly they are terrestrial. Okay, few pteridophytes, they are still aquatic. So some are epiphytes, जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, like lycopodium, ठीक है, lycopodium phlegmaria and Selaginella origena. ये एपिफेटिक स्टेट में ग्रो करते, दूसरे प्लांट के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं. सो मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स अगर आप देखा जाए तो एक्सेप्ट द ट्री फर्न्स आर हर्बिशियस, मतलब एक्सेप्ट द फर्न रेस्ट ऑल आर हर्बिशियस, ज्यादातर हर्ब्स के फॉर्म में दिखते हैं. ओके, नाउ विल सी अबाउट द प्लांट बॉडी. जो टेरिडोफाइट्स है उनके प्लांट बॉडी किस तरह से होते हैं. सो मोस्टली द साइज वेरीज फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर like azolla which is just 20 meter, ठीक है, azolla which is very small to 20 meter in the fern tree. Ferns जो है, ठीक है, they can grow up to 20 meter. Okay, so tree ferns, that is Anglopteris. Okay, so the main plant body is represented by diploid and sporophytes. जो sporophyte stage है, main plant body जो है, ठीक है, main plant body is sporophyte. Why? Because sporophytes जो है वो मेन प्लांट बॉडी है. Why? Because most of the life, जो ड्यूरेशन पूरे लाइफ टाइम में जो टेरिडोफाइट्स है, they have this stage. ठीक है, स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं. So they are we can simply say they are sporophyte. Okay, and as we have seen algae and the bryophytes, they are gametophyte. ठीक है, gametophyte stage जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए रहता है. So they are all haploid, पर ये डिप्लॉइड होते हैं. ठीक है, so sporophytic phase is dominant in the life cycle of the pteridophytes. Now gametophyte stage is usually independent in pteridophytes. So as we have seen bryophytes में gametophytes and sporophytes both were independent. ठीक है, gametophytes के ऊपर dependent था जो sporophyte stage, but here the gametophytes जो है वो independent होते हैं. Okay, as we can see, ये सिंपल एक फर्न को ले लो आप, तो राइजोम्स आर देयर, ठीक है, रूट्स भी है, राइजोम्स आर देयर, प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीव्स आर देयर. सो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज फ्रॉन्ट्स. ओके, सो इस लीफ के ऊपर स्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं. द स्पोर्स लाइक जो आपको दिख रहा है सर्कुलर स्ट्रक्चर, दैट आर नोन एज सोरस. ठीक है, ये इजीली आपको दिख सकता है विदाउट माइक्रोस्कोप. फर्न्स में अगर आप देखोगे लीफ लाइक जो फ्रॉन्ड है उसके ऊपर ग्रो करते हैं सोरस. ओके, that sorus is having sporangium, जिसके अंदर बहुत सारे spores बनते हैं. Okay, so this is about the plant body of pteridophyte. Vascular tissue की अगर बात हो तो proper vascular bundles are present. Okay, so vascular tissue, that is xylem and phloem, are present throughout the body of the pteridophytes. And the xylem consists of, xylem में यहाँ पे tracheids होते हैं, and the phloem is made up of sieve cell. Okay, so xylem here, xylem का जो we know xylems में ट्रैकियाड्स होते हैं कॉमनली टेरिडोफाइट्स में, एंड फ्लोएम्स में सीव सेल्स. ओके, एंड एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिन का भी प्रोडक्शन होता है, प्रोटीन, एक तरह के प्रोटीन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो xylem, phloem, they are properly present in the pteridophytes. Now sporophytes, ठीक है, since the plant body is sporophytic, that means most of the life जो plant body है टेरिडोफाइट्स का, ये sporophyte stage दिखता है. ठीक है, सो द प्लांट बॉडी इज जनरली हर्बेशियस एंड रेयरली वुडी, बहुत कम ही वुडी हो सकते हैं. टेरिडोफाइट्स ज्यादातर ये हर्बेशियस होते हैं. ओके, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स easily can be visible. So roots are of adventitious type, that means adventitious roots present होते हैं. Branching of the stem is of dichotomously type. ठीक है, dichotomous होता है in some, while मोनोपोडियल इन अदर्स. कुछ में डाइकोटोमस भी होते हैं और कुछ मोनोपोडियल्स भी होते हैं. लीव्स आर आइदर, छोटे लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं इन द टेरिडोफाइट्स, एंड द बिगर लीव्स आर आल्सो प्रेजेंट. द स्मॉल टाइप ऑफ जितने लीव्स होते हैं, स्मॉल लीव्स, दे आर नोन एज माइक्रोफिल्स. ओके, एंड स्मॉल लीव्स माइक्रोफिल्स एंड द लार्जर लीव्स, दे आर नोन एज मैक्रोफिल्स. ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो के बेस पे आप बोल सकते हो. सो सेलेजिनेला, दे आर मेगाफिल्स. जो सेलेजिनेला के लीव्स होते हैं, दे आर और मेगाफिल्स क्योंकि वो बिगर लीव्स होते हैं, दे आर लार्ज. एग्जाम्पल इज फर्न्स. Larger leaves of the ferns are called as fronds. Okay,
and the smaller leaves, they are known as microphylls. Now, if you see here, यहाँ पे मैच्योर स्पोर्स आर देयर, कुछ स्पोर्स है जो मैच्योर्स होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, एंड देन फाइनली इसी स्पोरेंजियम से जो स्पोर्स निकल रहे दैट डेवलप इनटू गैमेटोफाइट्स, okay, then finally the new sporophytes develop, and then again the sporophytes and gametophytes stage is found in the life cycle. Okay, so in most of the pteridophytes what happened, there is a special type of a leaf, ठीक है, that is special type of leaves होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, sporophylls होते हैं. The special type of the leaf they are known as sporophylls, ठीक है. So that contains sporangia, उसके अंदर spores बनते हैं. ओके, सो द स्पोरोफाइट्स रिप्रोड्यूस, जितने भी स्पोरोफाइट्स है, स्पोरोफाइट्स क्या बोल सकते हैं, एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, विच इज टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है दैट इज टू एंड डिप्लॉयड होता है और वो ग्रीन होता है, फ्री लिविंग होता है. ओके, सो स्पोरोफाइट्स रिप्रोड्यूसेस, the sporophytes reproduces asexually by the means of spores, okay, which develop into the sporangia. Sporangia के अंदर, तो let's take an example. Okay, so what happened, pteridophytes की जब बात करें तो हम लोग ले सकते हैं ferns. Okay, तो ferns में हमने क्या देखा, ferns they have leaf like structure, ठीक है, उनमें leaf like structures होते हैं, and okay, so that leaf like structure, जो special structures होते हैं, they are known as sporophyll, ठीक है. तो ये leaf like structure जो आपको दिख रहा है we can call as sporophyll बोल सकते हैं. ओके, तो ये जो फर्न प्लांट है दैट कैन बी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, ठीक है. यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या है, फर्न है. ओके, सो इन दैट देयर इज स्पोरोफिल. स्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, ठीक है, सर्कुलर एक कवर्स है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं. सो दीज स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर दे आर नोन एज स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं. बट हाउ डज द स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस, सो इन दिस स्पोरेंजिया बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के प्रोसेस से क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं. ओके, सो द स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स, ओके, लीफ और अ लीफ लाइक अपेंडेजेस. तो लीफ लाइक अपेंडेजेस, दिस लीफ स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरेंजिया है, एंड इन दैट where the sporangia is present, so whole that leaf like structure they are known as sporophyll, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स है जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे, बट कैसे बन रहे, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. और यही स्पोर्स आगे चल के क्या करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की प्रोसेस से गैमेटोफाइट्स बनाएंगे. ओके, गैमेटोफाइट. और इस टेरिडोफाइट में हमने ये देखा कि जो गैमेटोफाइट होगा दैट इज आल्सो फ्री लिविंग एंड इट इज आल्सो ग्रीन. ओके, सो फाइनली क्या है, स्पोरोफाइट है जो प्लांट बॉडी है दैट इज द फर्न. ओके, सो दैट स्पोरोफाइट विल हैव अ स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्पोरोफिल. उस स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होगा. ओके, एंड दैट स्पोरेंजिया विल कंटेन लॉट्स ऑफ स्पोर्स and we know by the process of meiosis within that sporangia the spores will be produced, ठीक है. तो बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे और उस एक सिंगल स्पोर्स का माइटोसिस होके गैमेटोफाइट बनेगा. ओके, सो दिस थिंग्स गोज ऑन एंड इन सम केसेस जैसे कि सेलेजिनेला और इक्विस्टम, ठीक है, अगर सेलेजिनेला को ले लो, इक्विस्टम को ले लो, सो दैट स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. तो उनमें क्या होता है, जो स्पोरोफिल है, ठीक है, एक सेलेजिनेला, if we take an example, so they are having a cone like structure. Okay, so in that we know ये आप ये बोल सकते हो कि that इक्विस्टम और सेलेजिनेला they have a sporophyll that is again the special leaves like structure. Okay, और उनमें क्या होगा, बहुत सारे स्पोरोफिल्स एक साथ होंगे और उनमें क्या होगा, स्पोरेंजिया. Okay, together they are known as cones. Together they are known as cones or strobilus. Okay, so उन्हें आप या तो कोन्स बोल सकते हो या तो स्ट्रोबाइलस बोल सकते हो. उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे. बट लाइक वी से आइदर इट इज इक्विस्टम, जैसे कि ये इक्विस्टम है, ठीक है,
सो दिस इज इक्विस्टम, जिसमें बहुत सारे यू कैन सी बहुत सारे एक साथ स्पोरोफिल्स है जिसके अंदर स्पोरेंजिया है, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रोबाइलस और कोन, ओके। और ये है सेलेजिनेला, ठीक है, इन विच लॉट ऑफ यू कैन सी बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं एंड टुगेदर इट इज नोन एज स्ट्रोबाइलस। सो इट हैज अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, तो ये एक तरह का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज कोन, ओके। सो स्पोरेंजिया प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे जो स्पोरेंजिया होंगे, सिंस यहाँ पे भी सेम वे यू विल सी लॉट्स ऑफ, अगर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो दे विल हैव स्पोरेंजिया, ठीक है, ये क्या होगा, स्पोरेंजिया, ओके। सो द स्पोरेंजिया विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, यहाँ पे बाय मियोसिस स्पोर्स फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। स्पोरेंजिया इज अगेन 2n डिप्लॉइड है, प्लांट बॉडी which is a sporophyte plant body ये भी 2n है, okay, but the spores that will be produced will be n, क्योंकि ये meiosis से बन रहे हैं, okay, and since meiosis is a reduction division, okay, so meiosis से आपके जो spores बनेंगे वो haploid होंगे। So sporangia produce haploid spore by meiosis in a diploid spore mother cell, तो mother cell जो है वो diploid है, बस उससे जो haploid cells बन रहे हैं that is by the process of meiosis. So this spore on germination will give rise to haploid gamete, ठीक है। अब ये स्पोर्स आगे क्या बनाएगा, हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा, या तो एंथ्रीडियम बना सकता है या तो आर्किगोनियम बना सकता है। सो इट विल अगेन गिव राइज टू गैमेटोफाइट्स, ओके, गैमेटोफाइट। एंड अगेन लास्टली विल सी जो स्पोर्स बनते हैं उससे डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनता है, द स्टेज वन इज प्रोथैलस, जिससे आगे फाइनली मैच्योर गैमेटोफाइट विल डेवलप। सो प्रोथैलस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज गैमेटोफाइट और सिंपली थैलॉइड गैमेटोफाइट वी कैन से, दैट इज यूजुअली स्मॉल। तो गैमेटोफाइट जो होगा वो स्मॉल होगा, मल्टी सेल्यूलर होगा एंड अगेन फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, ओके। सो पहले क्या बनता है, प्रोथैलस, देन फाइनली दैट प्रोथैलस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। आगे चल के मैच्योर होके वो खुद दिस गैमेटोफाइट बिकम्स इंडिपेंडेंट, बट अनलेस इट इज इन द अर्ली स्टेज इट इज डिपेंडेंट, ओके। अब so how does the formation of spores take place in pteridophytes, okay, so pteridophytes में अगर हमने देखा तो मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट, ठीक है। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जो कि अगेन 2n है, ठीक है, इट इज 2n डिप्लॉइड होते हैं, ओके। सो वी कैन से दिस इज मेन प्लांट बॉडी। सो दिस मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट होता है, they will have a special type of a leaf that is known as sporophyll, ठीक है, उनमें स्पोरोफिल है, स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स। उस स्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, इट विल हैव स्पोरेंजिया एंड विद इन दैट स्पोरेंजिया लॉट्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ये स्पोरोफिल जो है दैट इज 2n डिप्लॉइड है, स्पोरेंजिया इज अगेन डिप्लॉइड एंड द स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पे मियोसिस से क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं एंड स्पोर्स आर ऑल हैप्लॉइड। क्या बनेगा, स्पोर्स हैप्लॉइड, ओके। नाउ बट इन सर्टेन केसेस हमने क्या देखा, जो स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स यहाँ पे जो हमने देखा दैट इज वेरी रैंडम, और ये केस क्या है, फर्न का है, जनरली फर्न्स, ठीक है, ये चीज फर्न्स में हमें देखने मिलता है, स्पोरोफिल से स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से स्पोर्स बनते हैं। बट इन अनदर केसेस, स्पेशल टाइप ऑफ केसेस जहां पे कोन बनता है, एंड दैट इज सीन इन सेलेजिनेला, ठीक है। इन सेलेजिनेला स्पेशल टाइप ऑफ कोन्स आर देयर, ओके, दैट कोन्स विद कहां पे होते हैं, स्पोरोफिल्स के अंदर होते हैं, ओके, टुगेदर दैट इज स्पोरोफिल एंड दैट कोन्स टुगेदर वी कैन आल्सो कॉल एट स्ट्रोबाइलस। स्पोरोफिल से क्या बनते हैं, विद इन दैट देयर इज स्पोरेंजिया एंड बाय द मियोसिस अगेन स्पोर्स फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, ओके। सो ये केस दो डिफरेंट है, बिकॉज फर्न्स में तो डायरेक्ट आप देखोगे स्पोरोफिल होता है, ओके, बट हियर लाइक इन सेलेजिनेला देयर इज कोन फॉर्मेशन, ठीक है, वहां पे कोन्स होते हैं विद एंड द कोन्स आर प्रेजेंट, किसके, एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ है, ठीक है, दैट इज स्पोरोफिल, ओके, एंड विद इन दैट देयर इज स्पोरेंजिया एंड विद नाउ after the meiosis the spores will form. Now we can categorize
ठीक है, सिंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं द टाइप्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स कैन बी बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द स्पोर्स। ठीक है, जिस तरह के स्पोर्स बन रहे हैं उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स दे आर नोन एज होमोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट हो गए, कुछ होते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। सो होमोस्पोरस दैट मींस इनके पास जितने भी स्पोर्स बनेंगे सब एक साइज के होंगे। ठीक है, और स्पोर्स कहां बनेगा? विद इन द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहां होते हैं? स्पोरोफिल के अंदर होते हैं। सो स्पोरोफिल इज अ स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोरेंजिया है एंड विद इन दैट देयर इज स्पोर्स। ओके, यहाँ पे जितने स्पोर्स है सेम साइज के हैं। सो ऑल द स्पोर्स आर सेम साइज। नेक्स्ट केस में आप देखोगे हेटेरोस्पोरस। ठीक है, जितने भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है दे हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स। सो सबसे पहले अगर आप प्लांट बॉडी देखोगे, ठीक है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी होगा दे विल हैव टू टाइप ऑफ, ठीक है, स्पोर्स। कुछ स्पोर्स बहुत छोटे होंगे, ठीक है, विद इन द स्पोरेंजिया, ये भी स्पोरेंजिया के अंदर ही बनेंगे, बट जो स्पोर्स होंगे दे विल बी आइदर वेरी स्मॉल और कुछ बिगर भी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्पोर्स है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बिग स्पोर्स। ओके, सो माइक्रो एंड मेगा यहाँ पे क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स। ओके, एंड यहाँ पे जो बिगर स्पोर्स है दे आर नोन एज मैक्रोस्पोर्स और सिंपली मेगास्पोर्स भी बोल सकते हैं। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सेम काइंड। तो ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? सेम साइज का ही स्पोर्स बनता है। बट इन सम जेनस, ठीक है, या कुछ जेनेरा में देखा गया है कि लाइक सेलाजेनेला एंड साल्विनिया, ठीक है, दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ द स्पोर्स। वन इज मैक्रो, द लार्जर वन मैक्रोस्पोर्स एंड द स्मॉलर वन इज माइक्रोस्पोर्स। अब ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म मेल गैमेट। ठीक है, ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, एंड द बिगर वन, जो बिगर साइज के स्पोर्स है, दे विल फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे इससे। ठीक है, सो द मेगास्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इन द फीमेल, मेगा फीमेल, मैक्रो को हम मेगा भी बोल सकते हैं, एंड द स्मॉलर वन will change into or will develop into the male gametophytes. Okay, now how does the reproduction take place in the pteridophytes? ठीक है, सो सबसे पहले हमने अगर देखना है तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है विदाउट वाटर, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो रिप्रोडक्शन अकर बाय द स्पोर्स which is produced within the sporangia. Okay, so sporangia are bones on the ventral surface of the leaves. ये जो leaves देख रहे हो उसके ventral surface पे, okay, there is lots of spores formation take place ventral surface of the fertile leaves. सारे लीफ के ऊपर नहीं होते, जो फर्टाइल लीव्स के ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वी कैन से जहां पे आप देखोगे स्पोरांजिया प्रेजेंट है, दैट फर्टाइल लीव्स दे आर नोन एज स्पोरोफिल। उस फर्टाइल लीव्स को क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। एंड दैट स्पोरोफिल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ लीफ। तो स्पेशल है बिकॉज दे आर फर्टाइल। ओके, सो सिंपल विल सी द आउटलाइन ऑफ रिप्रोडक्शन इन द टेरिडोफाइट्स किस तरह से होता है। सबसे पहले जो प्लांट बॉडी है दैट इज नोन एज द स्पोरोफाइट। ओके, दिस इज द एडल्ट स्पोरोफाइट। देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स है, उस लीफ के ऊपर क्या है? ठीक है, दैट स्पेशल टाइप ऑफ लीफ इज स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल्स के अंदर क्या है? स्पोरांजिया है, बहुत सारे स्पोरांजिया है। विद इन दैट स्पोरांजिया देयर विल बी द स्पोर्स फॉर्मेशन। ओके, एंड दैट स्पोर्स जो कि मियोसिस से बने हैं, आगे चल के वही स्पोर्स माइटोसिस से अब क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। गैमेटोफाइट्स को आप प्रोथैलस भी बोल सकते हो। ओके, and that prothallus will have two type of gametes वहां बनेंगे, that is one is antheridium जिससे male gamete बनेगा, and archegonium that will develop into the female gamete जिसके अंदर egg cells होंगे। Okay, now the fertilization will take place archegonium and antheridium। ठीक है, वहां पे archegonium is containing the female gamete और वहां पे antheridium के पास है male gamete। फ्यूजन होगा gametes का, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, and then finally that embryo will change into gametophyte। यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द यंग gametophyte, ये gametophyte है। ओके, एंड देन इट इज हैविंग स्पोरोफाइट।
और यहाँ पे स्पोरोफाइट अभी यंग है, गैमेटोफाइट भी यंग है. फर्दर इट विल डेवलप एंड देन फाइनली इट विल change into a complete adult sporophyte. ठीक है. So in this way the whole reproduction process goes on. Now we'll see what is gametophyte. Gametophyte क्या है? ठीक है. Just we have seen gametophyte जो है, it has both archegonia and antheridia. Archegonia that is female gamete. ठीक है. यहाँ पे female gametophyte है, female gametophyte, and antheridia that is male gametophyte. So this ये क्या है? फर्न का गैमेटोफाइट है, which is this gametophyte is also known as prothallus. So gametophyte this require cool, damp and shady place to grow. Dry direct sunlight के presence में this ferns do not grow. या pteridophytes को अगर आप देखो, direct sun rays जो है इनके लिए बहुत harmful होता है. Okay, so because of this specific requirement, इन्हें cool, damp, shady place चाहिए. ठीक है. सो इतना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इनका, एंड नीड द वाटर. वाटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट, ठीक है, जो कि एंथ्रीडिया के पास जो मेल गैमेट है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द आर्कीगोनिया फीमेल गैमेट, और विदाउट वाटर इट इज नॉट पॉसिबल. सो द स्प्रेड ऑफ द टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड. बहुत ज्यादा टेरिडोफाइट्स नहीं पाए जाते क्योंकि इनका जो रिक्वायरमेंट है कूल, डैम, शेडी प्लेसेस, एंड इवन दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन. सो एवरी टाइम दिस एनवायरमेंटल कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनका फुलफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से द नंबर ऑफ द टेरिडोफाइट्स इज वेरी लिमिटेड. सो द गैमेटोफाइट, ठीक है, दिस गैमेटोफाइट अगेन इट इज प्रोथैलस. इट बियर्स व्हाट? द टू सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज आर्कीगोनिया भी प्रेजेंट है एंड एंथ्रीडियम ऑल्सो. Okay, so antheridia, the male sex organ, and the archegonia, that is the female sex organ, both is present in one thallus. एक prothallus में या एक gametophyte में ही present होता है. Now, what is antheridium? It is very sessile, ठीक है, and consist of outer sterile wall. जो wall होता है antheridium का, that is very sterile. Okay, and found in a large number. Okay, and found a large number of androcytes present होते हैं, and androcytes में capability होती है that androcytes will give rise to, so this androcyte क्या बनाएगा? This will form motile anthrazoids. Okay, now this is sessile, that means ये move कर सकते, motile होता है. Okay, and again we'll see archegonia. Archegonium जो है वो क्या है? Each archegonium is a flash shape. ठीक है, एक फ्लैश शेप का स्ट्रक्चर होता है. फ्लैश शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ बेसल, स्वेलन पार्ट, एम्बेडेड पोर्शन. ओके, एंड द वेंट्रल पार्ट इज वेरी शॉर्ट. नेक रीजन शॉर्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सेल्स भी होते हैं. द वेंट्रल साइड इंक्लोज एग्स एंड द वेंट्रल कैनल सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट. नाउ दीज आर द सेक्स ऑर्गन्स इन द टेरिडोफाइट्स. अब क्या होगा? सिंस मोटाइल होते हैं एंथ्रीडियम, so that antheridium has the male gamete which is to be transferred to the archegonia. Fertilization कैसे होगा? ठीक है, since the fusion of the gametes will take place and then the fertilization will occur. So fertilization is accompanied or it is completed only because of the water. Without water the fertilization will not take place क्योंकि जो gametes है वो transfer नहीं होंगे, male gamete transfer नहीं हो पाएगा. So water is required for the transfer of anthrazoids. ठीक है, anthrazoids will only be transferred with the help of water to the mouth of archegonia. ठीक है. Now the fusion of the male gamete and the eggs restore the diploid chromosome. Firstly जो spores बने, ठीक है, spores haploid था, haploid spores से अब जो gametophyte बना, ठीक है, that gametophytes had both antheridium and archegonium, दोनों haploid होगा. ठीक है, तो यहाँ पे archegonium and anthrazoids both are haploid. Fusion of the gamete will take place and again जो zygote बनेगा, they will restore the chromosomal number. ठीक है, then diploid chromosome number is been restored. So again the zygote are diploid. Okay, so this is also just an outline. Okay, तो हमने क्या देखा था? स्पोर्स है. स्पोर्स से क्या बनते हैं? गैमेटोफाइट बनता है. That gametophyte has both archegonium
एंड एंथ्रीडियम दोनों है उसके पास। आर्किगोनियम के पास क्या है, एग सेल्स है, एंड एंथ्रीडियम दे हैव एंथ्रिजोइड्स। ओके, एंथ्रिजोइड्स है। नाउ फ्यूजन ऑफ बोथ द गैमेट विल टेक प्लेस, सो दैट इज द प्रोसेस सिंगैमी, जो कि फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो आप। सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट विल डेवलप, इट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो। अब यही एम्ब्रियो बाद में क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट्स। अगेन दिस स्पोरोफाइट विल हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ। ओके, आप बोल सकते हो स्ट्रोबाइलस, एंड स्ट्रोबाइलस विल हैव द स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम होगा उसके अंदर। अगेन द स्पोर मदर सेल्स, जिससे आगे स्पोर्स बनेंगे। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इन दिस वे द थिंग्स गोज ऑन। तो यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन भी है। गैमेटोफाइट जितने भी गैमेट्स है वो एन होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, बोथ ऑल आर हेप्लॉइड, बट द जाइगोट दैट इज 2n, डिप्लॉइड होगा। ओके, एम्ब्रियो अगेन 2n, स्पोरोफाइट भी 2n है। ओके, स्ट्रोबाइलस हो गया, स्पोरोफिल हो गया, ऑल आर 2n। स्पोर्स मदर सेल, यहां से अब आप देखोगे बाय द प्रोसेस ऑफ दीज आर मदर सेल, स्पोर्स बने, बट मियोसिस से जो स्पोर बनता है वो सब हैप्लॉइड होगा। ओके, सो दिस इज all about pteridophytes. Now the life cycle of heterosporous pteridophyte. ठीक है, previously we have seen homosporous जितने भी pteridophytes है, since spores एक size के होते हैं तो उनका life cycle कैसे चलता है, ठीक है, we have seen. Now we'll see about homosporous, not this is heterosporous. अगर अलग अलग तरह के heterosporous spores बन रहे हैं, so how the life cycle will continue. पहले तो स्पोरोफाइट हम देखेंगे कि किस तरह का स्पोरोफाइट है। ठीक है, कोन्स किसमें होते हैं, कोन्स किसमें बनते हैं, सेलेजेनेला। ठीक है, सो द प्लांट बॉडी वी कैन सी, यहाँ पे प्लांट बॉडी हम लोग ले सकते हैं सेलेजेनेला का, जिसमें यू विल सी ब्रांचेस होंगे, और उस ब्रांचेस के ऊपर क्या होगा, ठीक है, गैमेटोफाइट होगा, उसके ऊपर क्या होंगे, कोन्स भी होंगे। ठीक है, द कोन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, सो कोन्स विल हैव, व्हाट इज कोन्स, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पोरोफिल है। ठीक है, कोन्स क्या है, स्पोरोफिल है। ओके, सो टुगेदर बहुत सारे स्पोरोफिल्स अगर एक साथ है, ठीक है, अगर बहुत सारे स्पोरोफिल्स एक साथ है और सबके ऊपर, ठीक है, स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट। ठीक है, बहुत सारे स्पोरोफिल्स है, स्पेशल लीव्स है। ओके, सो स्पेशल लीव्स है और बहुत सारे स्पोरोफिल एक साथ है कलेक्टिवली, सो दिस स्पोरोफिल, ठीक है, ऑल आर स्पोरोफिल, ये सारे क्या है, स्पोरोफिल्स है, टुगेदर दे आर नोन एज कोन्स। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो कॉल एज स्ट्रोबाइलस। ठीक है, दैट कोन्स आर देयर। सो कोन्स में क्या आप देखोगे, दे विल हैव, कोन्स के पास क्या होता है, जो स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके पास जो लीव्स होते हैं, दे विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, और विच अदर्स में बी बिग बिग स्पोर्स। छोटे वाले स्पोर्स को आप क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स, इट इज नोन एज माइक्रोस्पोर्स, एंड द बिगर वन दे आर नोन एज मैक्रो और मेगा। ठीक है, मेगा भी बोल सकते हो, मैक्रो भी बोल सकते हो। सो दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट। माइक्रोस्पोर्स क्या बनाने वाला है, ओके, दे विल जस्ट फॉर्म द मेल गैमेट और एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, एंड मेगास्पोर्स will form आर्किगोनियम, आर्किगोनियम बनाएगा। ठीक है, एंथ्रीडियम विल हैव एंथ्रेजोइड्स। ठीक है, एंथ्रेजोइड्स जो कि मेल गैमेट है, और आर्किगोनियम के पास क्या होता है, एग सेल्स होते हैं, एग्स होते हैं। ठीक है, देन फाइनली द फ्यूजन विल टेक प्लेस। व्हाट इज प्रोथैलस, प्रोथैलस इज नोन एज गैमेटोफाइट। ठीक है, उस गैमेटोफाइट के पास दोनों होता है, दिस प्रोथैलस विल हैव बोथ, उसके पास आर्किगोनियम भी है एंड एंथ्रीडियम इज आल्सो प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट इन वन, दैट इज प्रोथैलस, उसी को गैमेटोफाइट बोलते हैं। बाद में यही गैमेटोफाइट क्या बनाएगा आगे चल के, इट विल जस्ट चेंज इनटू स्पोरोफाइट। ओके, सो इट विल चेंज इनटू स्पोरोफाइट्स। ओके, सो स्पोरोफाइट क्या होता, फाइनली डिप्लॉइड है, कोन्स है, कोन्स हैव माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स, एंड दिस जिसके अंदर ये स्पोर्स बन रहे हैं दैट इज स्पोरेंजिया, दैट इज नोन एज
sporangia. So sporangia again it is 2n. ठीक है, स्पोर्स जितने बन रहे हैं दैट ऑल आर हैप्लॉइड स्पोर्स, ये जितने स्पोर्स है हैप्लॉइड है। ठीक है, कौन स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स, बहुत सारे स्पोरोफिल्स है, सो दैट इज ऑल डिप्लॉइड। ठीक है, जो गैमेटोफाइट बन रहा है अगेन इट इज हैप्लॉइड, क्यों, क्योंकि यू कैन सी एंथ्रीडियम इज सिंगल, आप बोल सकते हो हैप्लॉइड है, आर्किगोनियम भी हैप्लॉइड है, फ्यूजन होगा इनका, then the zygote will form and that all will be, zygote जो बनेगा वो diploid होगा, then finally the sporophyte will also be 2n. ओके, सो हेटेरोस्पोर्स क्या करते हैं, दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, द टू स्पोर्स आर प्रेजेंट एंड इन दैट केस व्हाट हैपन, द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स नीड टू बी डन। ठीक है, एंथ्रीडियम से जो एंथ्रीजॉइड्स बन रहे हैं दे ऑल आर मोटाइल एंड इट विल कम टू दी आर्किगोनियम। ठीक है, फिर फ्यूजन होगा एक के साथ एंड देन फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। ठीक है, सो इन दिस वे हेटेरोस्पोर्स दो तरह के स्पोर्स होते हैं। सो वी कैन से कि जो हेटेरोस्पोर्स है यहाँ पे वी कैन सी एक चेंजेस दिख रहा है हमें ब्रायोफाइट से। ओके, ब्रायोफाइट से बिल्कुल अलग है यहाँ पे जो गैमेट्स है, एज वी नो यहाँ पे मेल गैमेट ट्रांसफर हो रहा है फीमेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज जस्ट प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम में, जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रोथैलस जो बन रहा है वो विद इन दैट स्पोरांजिया और प्लांट बॉडी के विद इन है। ओके, दैट मीन्स फीमेल गैमेट यहां मूव नहीं कर रहे हैं। नाउ द इम्ब्रियो, जाइगोट बना, जाइगोट से ही इम्ब्रियो बनेगा। सो द जाइगोट अंडरगो रिपीटेड डिविजन, ठीक है, टू फॉर्म अ मल्टी सेल्यूलर एंड अ वेल डिफरेंशिएटेड इम्ब्रियो। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड इम्ब्रियो फाइनली इट विल चेंज इनटू स्पोरोफाइट। ठीक है, प्लांट बॉडी बन जाएगा। ओके, द यंग स्पोरोफाइट, जितने भी यंग प्लांट बॉडी है दे रिमेन अटैच टू द गैमेटोफाइट, वो गैमेटोफाइट से ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। इट विल बी डिपेंडेंट, यंग स्पोरोफाइट जो होंगे दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ फूड दे विल ड्रॉ द और टेक द नरिशमेंट। ओके, सो स्पोरोफाइट कैसे अपना नरिशमेंट डिराइव करता है, फ्रॉम द गैमेटोफाइट विच इज ग्रीन। ओके, and then it will draw nourishment from the prothallus which is gametophyte until it is developed and it develop its own root, stem, leaves, तब तक जब तक उसका अपना stem, leaves ना हो, so it will derive nutrition from the gametophyte. So sporophyte is dependent on gametophyte. यहाँ पे जो sporophyte है किस पे dependent है, gametophyte पे dependent है, but only during the early stage. Okay, and the development of the zygote into the young embryo, zygote जो young embryo में convert हो रहे हैं, okay, that take place within the female gametophyte. That means female gametophyte is just present on its own, एक ही जगह पे है, वो move नहीं कर सकते हैं। और यही चीज यहाँ पे आप देख रहे हो, female gametophyte here cannot move and the male gametophyte is motile. So this is a precursor of the seed habit. ठीक है, क्योंकि इसके टेरिडोफाइट्स में हमने देखा सीड्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, बट ये चीज हमने देखा कि फीमेल गैमेटोफाइट दे कैनॉट, दे आर जस्ट इन देयर ओन प्लेस, जो मेल गैमेट्स है वो मूव कर रहे हैं। तो यहां से क्या होता है, शुरुआत होता है सीड हैबिट का। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग अब जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले जिसमें सीड का डेवलपमेंट है, बट नेकेड सीड होते हैं। ठीक है, नाउ दिस वी कैन से दिस इज अ प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट and considered as an important step in the evolution. जो प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट्स पढ़ा, टेरिडोफाइट्स, इसके बाद टेरिडोफाइट्स में क्या है, सीड्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सीड बनने का प्रोसेस जरूर स्टार्ट हो रहा है बट इट इज नॉट बीन कंप्लीटेड। फाइनली ये कंप्लीट कब होगा, जिम्नोस्पर्म में। ओके, नाउ सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप in the evolution of the plant kingdom. Okay, so this is the precursor of the seed habit. Now economic importance तो होगा टेरिडोफाइट्स का। So how they are important, their fossil remain contribute to coal deposition. ठीक है, इनके fossils जितने भी टेरिडोफाइट्स है, so their fossils is helping in the formation of the coal. Pteridophytes are good source of the food. Okay, so like Marsilia, they are edible. Now few of the pteridophytes, their root, so that is a root of adentum, can cure the throat infection. Now lycopodium, ठीक है, ये भी एक तरह के टेरिडोफाइट्स है, ये ट्रीटमेंट में यूज होते हैं बट किस चीज के, लंग्स एंड द किडनी। ठीक है, देयर डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड। नाउ इक्विस्टियम, ठीक है, देयर स्टेम्स आर यूज्ड फॉर स्क्रबिंग एंड पॉलिशिंग। अगेन ferns which is also
टेरिडोफाइट ये क्या करता है, सॉइल इरोशन से बचाता है. तो सिंपली वी कैन से दे आर द सॉइल बाइंडर. Okay, so in this way, the economic importance are also there of the pteridophytes. Now we can see कि किस तरह से हम classify कर सकते हैं pteridophytes को. So classify can be done on so there is a 4 classification. ठीक है, Cyclophyta, then there is Lycophyta, Sphenophyta and Pterophyta. So ये 4 कैटेगरीज में आप देख सकते हो पूरे जो pteridophytes है, they can be classified. So Xylophyta, these are oldest known land inhabited. क्योंकि हमने पढ़ा जो pteridophytes है, they are the first plant, terrestrial plant. Okay, so they are the oldest land inhabited. Xylophyta rootless है क्योंकि इनके पास rootless है, but they are having rhizoids. Most of the plant जो है Xylophyta के, they are fossils. Okay, then Lyophyta, they are commonly club mosses और spikes के जैसे mosses होते हैं. Root stem leaves होता है because pteridophytes में we have seen root leaves and stems are there. But since ये fossil part था Xylophyta, इनके पास rhizoids थे. ठीक है, leaves are microphylous, that means small leaves होते हैं present Lycophyta में. ठीक है, जिसका example है Selaginella. ठीक है, Sphenophyta, the stems are jointed. इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेम्स आर जॉइंटेड, डिपोजिशन ऑफ सिलिका इज देयर इन द स्टेम, सो द स्टेम्स आर हार्ड. ठीक है, इसका एग्जांपल है इक्वेस्टम. सो इक्वेस्टम बिलोंग्स टू स्फेनोफाइटा. नाउ टेरिडोफाइटा, दे आर कॉमनली नोन एज फर्न फैन लाइक लीव्स. फर्न्स के जैसे होते हैं, स्टेम्स इन देम फॉर्म्स द राइजोम. स्टेम से ही राइजोम बनता है. सो ये था क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट का. नाउ वी हैव केम टू द एंड ऑफ द टॉपिक Pteridophyta, which is the first terrestrial plant. Okay, so we have deal with the life cycle of homospores, pteridophyte, heterospores. I hope your concept is clear. इनका जो classification है, ठीक है, what is the habitat, कहाँ पाए जाते हैं, okay, किस तरह से fertilization होता है. Okay, I hope this is clear. Thank you for watching.